Hello everyone, welcome to SwiftLearn, India's most sincere learning destination for classes 1 to 10. मेरा नाम है जागृत और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ प्रोबेबिलिटी सीरीज का पार्ट 2. थैंक यू फॉर ऑल योर लव्स इन द फॉर्म ऑफ लाइक्स एंड कमेंट्स इन माई प्रीवियस वीडियो एंड आई होप आपकी सेकेंड वीडियो में भी मैं आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँ. ओके, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं उनके लिए here at SwiftLearn we provide 100% live interactive classes. We give personalized attention to every student by having a maximum batch limit of 6 students per batch. One-to-one student-teacher ratio also available. We have a dedicated acad mentor team that works with you in your progress, and we cover whole syllabus that is at your school as per latest ICSE and CBSE pattern. Some of additional key features are on your screen. As you can see, there's SATs from where you can judge yourself in online level with national level kids, and you can see where you stand. You can take unlimited practice test series, okay, and we also provide subjective tests where you can express the answer in a descriptive way like you do in your school. So let's start with today's topic, that is probability 2. But like, subscribe and bell notification very much for you guys so that you don't miss my next video. Okay, so probability 2. तो probability 2 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज बेटा? हम देखेंगे what is an sure event, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना, थोड़ा सा बताया था मैंने, साइड से बस लिख दिया था. ठीक है, वी आर गोइंग टू लर्न what is an sure event. वी विल डिफाइन एन इम्पॉसिबल इवेंट कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी. We will find the probability of a possible event and an impossible event, and we will also explain you through questions like through tossing a coin and dice. Today every topic will be followed by an example, unlike the previous slide. In the previous discussion, in the previous class, we were discussing about the definitions, as you might say, but there were less number of questions. But today it is exact opposite of that. Every concept will be followed up by a question, and this class is going to be very important for you in terms of practicing questions. So whenever there is a question on screen, please pause the video and try to first analyze the question yourself and then move on. And always have a pen and pencil with you, because you're not watching a movie, you're studying a class. If you will keep on watching and something pops up, you will move on to the next video and you will forget whatever is taught here. So always have a pen and copy with you. So without wasting much time, let's move on to our first topic, that is sure event. That what really is a sure event. तो a sure event क्या होगा बेटा? A sure event is an example which happens, is an event, sorry, which happens like confirm है कि वो होगी ही होगी. ठीक है, कि श्योर इवेंट टू ऑब्टेन अ नंबर बिटवीन 1 to 6. जब आप एक डाइस फेंकते हो तो कंफर्म है कि नंबर कहाँ आएगा, 1 और 6 के बीच में ही आएगा, राइट? सो दिस इज नोन एज अ श्योर इवेंट. एक इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है बेटा? इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है? क्या जब आप एक डाइस फेंको तो 8 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना, अनलेस आपने एक कस्टमाइज डाइस खरीदा हो अपने लिए जिसमें 8 भी हो. ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट. एन इम्पॉसिबल इवेंट इज एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन. ओके, E is an impossible event if and only if P E equals to 0. In flipping a coin once, an impossible event would be both head and tail. तो इसने जो P equals to 0 लिखा है, P equals to 0, ये डोनेट कर रहा है कि probability of event क्या होगी, 0 आती है. ठीक है, जैसे जब आप एक कॉइन फ्लिप करते हो तो क्या ऐसा हो सकता है कभी कि बोथ हेड और टेल दोनों आ जाए एक ही बार में? ऐसा नहीं होता ना. तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट कहा जाएगा. ठीक है, आई होप सबको क्लियर है. क्लियर है तो जल्दी से एक लाइक तो बनता है, एक छोटा सा लाइक प्लीज प्लीज प्लीज. ओके, सो लेट्स डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड इट मच बेटर. तो एक बैग ले लेते हैं. अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल, अ येलो बॉल, एंड ऑल ऑफ दीज बॉल्स आर ऑफ सेम साइज. ओके, Mishika takes out a ball from a bag without looking into it. What is the probability that she will take out a yellow ball? जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है वो प्लीज वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को पहले खुद करने की कोशिश करो. ठीक है, और जो लोग नए हैं, लेट्स अस कंटिन्यू विद दैट. ओके, सो येलो बॉल बेटा निकालने की प्रोबेबिलिटी, अगर आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता हो तो क्या है कि नंबर ऑफ लाइक न्यूमरेटर में क्या आता है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम. तो पहले पॉसिबल आउटकम्स को क्या करते हैं ना, कुछ डिनोट कर देते हैं. ठीक है, तो येलो के लिए हम वाई अल्फाबेट यूज करेंगे, ब्लू के लिए हम ब्लू अल्फाबेट यूज करेंगे, एंड फॉर द रेड वी विल टेक आर.
ओके, इवेंट को हम फ्रॉम इवेंट विल बी डोनेटेड एज वाई, आर एंड बी. ओके, सो फॉर द फर्स्ट थिंग, लाइक हाउ मेनी टोटल आउटकम्स आर देयर. बेटा टोटल आउटकम 3 ही तो है. ठीक है, एक बैग में 3 ही बॉल्स हैं, रेड, ब्लू एंड येलो. ठीक है, तो टोटल आउटकम कितने हो गए? हाउ मेनी टोटल आउटकम्स आर देयर? 3 टोटल आउटकम्स आर देयर. सो येलो वाज डोनेटेड बाय वाई, so number of outcomes in favor of yellow is 1 because 1 ball is there of yellow. So p y is equals to 1 by 3. The number of outcomes favorable to the event b, ठीक है, b means blue ball, so that is also 1, so it is also 1 by 3, right? Total is 1 by 3 and number of blue balls is 1. In the numerator, number of blue balls divided by denominator, the total number of balls, so that is 1 by 3. And of course red के लिए भी 1 by 3 आएगा आपका आंसर, क्योंकि नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं 1 और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं 3. तो जिन लोगों ने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करा है, वेरी गुड. नाउ लेट्स, जिन लोगों ने ये वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करा है, वेरी गुड, कीप इट अप. ओके, सो इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया इस एक्टिविटी से? ठीक है, तो इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया, एक इवेंट जो होती है जब उसके आउटकम बेटा 1 होता है, जैसे 1/3, 1/3, 1/3 है ना, तो उनको एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट. एन इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज नोन एज एलिमेंट्री इवेंट. द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट्स ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट हमेशा 1 आता है. ठीक है, जब आप सारे प्रोबेबिलिटी के जो इवेंट्स हैं उनको आप प्लस करोगे तो 1 आएगा, क्योंकि जब मिशिका ने बैग के अंदर हाथ डाला है और बॉल निकालेगी तो कंफर्म है ना कि बॉल निकालेगी, मतलब ये आउटकम तो श्योर है ना. इसीलिए जब आपने सारे येलो, ब्लू और रेड को ऐड किया तो आपका 1 आया, कि आउटकम तो आएगा ही आएगा. ठीक है, तो एक और एग्जांपल से समझते हैं. मैंने आपको बोला था कि कोई भी कॉन्सेप्ट हमेशा फॉलोड बाय एन एग्जांपल होगा इस बार. तो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं. सपोज वी थ्रो अ डाइस, हमने एक डाइस फेंका. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4? तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर ग्रेटर देन 4 आएगा? What is the probability of getting a number less than or equal to 4? और सेकेंड पार्ट है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर जो है वो लेस देन और इक्वल टू 4 आएगा? चलो इसको एक बार डिस्कस करते हैं. ठीक है, सबसे पहले दिमाग में क्या लाओ? फॉर्मूला लाओ सबसे पहले दिमाग में. तो दिमाग में अगर आप फॉर्मूला लाते हो तो क्या लिखा जाता है? PE. ई मतलब इवेंट. तो पहले आपको नाम देना पड़ेगा इवेंट को, लाइक नंबर ग्रेटर देन 4 को आप क्या बोलोगे और नंबर लेस देन 4 को आप क्या बोलोगे. ठीक है, तो फिलहाल E1 और E2 दे देते हैं. फिर उसके बाद इक्वल का साइन आता है और न्यूमरेटर में आता है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम और डिनोमिनेटर में आता है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल. तो डाइस मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? तो बेटा जब आप डाइस फेंकते हो तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आएंगे? क्या क्या हो सकता है? 1 और 6, 1 से लेकर 6 के अलावा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है ना. 1 2 3 4 5 6, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके कितने हो गए? 6 हो गए. ठीक है, फिर उसके बाद उसने क्या पूछा फर्स्ट पार्ट में? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4? तो 4 से ग्रेटर वाले आउटकम अलग कर दो. कितने होते हैं 4 से ग्रेटर वाले आउटकम? 5 और 6. आई गेस आप लोगों ने सोच ही लिया होगा, बहुत समझदार है आप लोग. तो 5 6 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? 2 लिखोगे. नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या लिखोगे? 2 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम दैट इज 6. तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या बनेगा? 2/6 बनेगा. ठीक है, अब उसने क्या बोला था सेकंड पार्ट में? नंबर ऑफ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4. ठीक है, अब लेस देन 4 के लिए क्या बनेगा फॉर्मूला? नंबर P नंबर ग्रेटर देन 4, सॉरी लेस देन 4, और लेस देन 4 अगर आप काउंट करो कितने होते हैं? 1 2 एंड 3. ये 3 डिजिट्स होते हैं जो 4 से नीचे होते हैं डाइस में. तो आपकी बार आंसर क्या बनेगा? 3/6. ओ सॉरी 4, 3 को भी काउंट करेंगे. 4/6. ओके, लेस देन 4 और इक्वल टू 4, दैट्स वाई उन्होंने 4 भी काउंट किया, ये बात याद रखना. सो 4/6 आपका आंसर आ गया 2/3. ठीक है, तो क्या ये एलिमेंट्री इवेंट्स थे? सोचो सोचो सोचो. एक का आंसर आ रहा था 2/, एक का आंसर आ रहा था 4/. क्या ये एलिमेंट्री इवेंट्स थे? नहीं थे बेटा, क्योंकि इसमें 2 और 4 आउटकम्स आ रहे थे, इसलिए इनको हम एलिमेंट्री इवेंट्स नहीं बोलते हैं. ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो. सिर्फ क्वेश्चन तो कर लोगे, लेकिन जब MCQ में पूछेगा व्हाट इज एलिमेंट्री इवेंट, टिक एनी ऑफ दैट, तब क्या करोगे? सो ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग. तो अब देखते हैं, जो मैंने आपको बोला था कि अगर आप जितने आउटकम आए उनको आप ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा. तो एक आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आया था 1/3, सेकंड आंसर का आंसर आया था 2/3. दोनों को ऐड करा तो आंसर 1 आया. ठीक है, ये वेरीफाई करने के लिए होता है, इसको क्वेश्चन में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती. ठीक है, तो अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक.
इन इक्वेशन वन एफ इज नॉट एज सेम एज ये, जैसे ये है इक्वेशन वन, जिसको नहीं नजर आई है ये इक्वेशन वन, बेटा देखो उसके आगे वन लिखा है ना ये, अब इस इक्वेशन की वन बात कर रहे हैं, ठीक है। इन इक्वेशन वन एफ इज सेम एज नॉट ई, जो आपका एफ है वो नॉट ई के बराबर है, ठीक है। अब नॉट ई कैसे आता है ये देखते हैं। तो बेटा नॉट ई कैसे आता है, पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू वन, तो पी नॉट ई क्या हो जाएगा, वन माइनस पी ई। मतलब कोई चीज होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपको पता है तो उसकी ना होने की भी तो निकाल सकते हो, उसी को हम पी नॉट ई बोलते हैं। टोटल किसी चीज के, दोनों चीज के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वन। किसी एक चीज के होने की प्रोबेबिलिटी आपको पता चल गई तो वन से उसको माइनस कर दो, उसको ना होने की प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा फास्ट हो गया, चलो एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। कोई चीज, मतलब दो चीजों की प्रोबेबिलिटी निकाली, हेड आने की निकाली, टेल आने की निकाली, जब दोनों को ऐड करोगे तो आंसर वन आता है। मैं कह रहा हूँ अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली तो वन से हेड आने की प्रोबेबिलिटी माइनस करो तो आपको पता लग जाएगा टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो इसी चीज को इन्होंने फॉर्मूले में लिख दिया, पी नॉट ई इक्वल्स टू क्या होता है, वन माइनस पी ई। क्या ये बात समझ में आई? ओके, जिसको नहीं आई वो अभी टेंशन मत लो, हम अभी एक न्यूमेरिकल करेंगे इसके बाद, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो पी नॉट ई को कैसे डोनेट करते हैं, ई के ऊपर एक छोटा सा बार लगा के, रिप्रेजेंटिंग नॉट ई। इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट ई। इसको इवेंट ई का क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। सो चलो डाइस में ही देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको टॉपिक ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस। क्या 8 आ सकता है जब एक डाइस फेंकोगे आप? सोचो सोचो सोचो, नहीं आ सकता है, क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम तो 1/6 हो गए। डिनोमिनेटर तो हमारा क्लियर है फॉर्मूले के हिसाब से, p नंबर ग्रेटर देन 8, डिनोमिनेटर क्लियर है, टोटल आउटकम 6। तो लेकिन नंबर ऑफ 8, तो 8 होता है क्या डाइस में, नहीं होता है, तो 0.6 आ जाएगा। तो इस वजह से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इससे हमने क्या सीखा कि एक इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा क्या आती है, 0 आती है। क्या ये बात समझ पा रहे हो बेटा? What is the probability of getting a number less than 7 in a single throw of dice? अब आपको less than 7 चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला देखते हैं, फिर से दिमाग में मैचिंग करते हैं फॉर्मूला। Probability of getting a number less than 7, तो PE, इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। P less than 7 क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो बेटा टोटल आउटकम आपके कितने हैं, 6 है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ फेवरेबल 7। लेस देन 7 कितने डिजिट्स होते हैं, 1 और 1 से लेकर 6 के बीच में सारे डिजिट्स ही लेस देन 7 है जो आपके डाइस में अवेलेबल है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 1 आ गया, है ना। तो ये 100% था कि पक्का है कि आपका जो नंबर है वो क्या आएगा, 7 से नीचे ही आएगा। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट जो 100% होगा ही होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, 1 आती है। सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी PE वी सी दैट न्यूमरेटर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम E जो होता है वो हमेशा लेस होता है डिनोमिनेटर से नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम से। इसीलिए आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में, लाइक 0.25, 0.85, 0.89। क्यों आता है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा आपको बड़ा ही मिलेगा, क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है वो हमेशा क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं जो आउटकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे, ठीक है। तो 2 players गीता एंड अनिका प्ले टेनिस बॉल। इट इज नोन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गीता विनिंग द मैच कितना है, 0.68, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिका विनिंग अ मैच कितना है, निकालनी है आपको। तो अगर 2 ही प्लेयर खेल रहे हैं तो अगर मैं ये लिखूं कि P अनिका विन, या मैं ये लिखूं P नॉट गीता, क्या दोनों बातें सेम नहीं है? अगर अनिका जीतेगी तो गीता ही तो हार रही है, तो मैं गीता की हारने की निकाल सकता हूँ ना। गीता की विनिंग की प्रोबेबिलिटी मुझे पता है, तो मैं गीता की हारने की तो लिखा सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, अभी फॉर्मूला बताया था, P नॉट E
गीता नहीं जीतेगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ई को मैं आप छोटा सा लिख दो, गीता नॉट विनिंग। ठीक है, पी नॉट ई का फॉर्मूला क्या होता है, पी माइनस पी ई। ठीक है, तो 1 माइनस विनिंग की कितनी थी 0.68, तो इसको आप माइनस कर दो कि आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो P नॉट ई बोल लो या P अनिका बोल लो, बात एक ही है, आपका आंसर आएगा 0.32। ठीक है, देखते हैं क्या हम सही थे या नहीं। पी ई कितना आ रहा है और पी नॉट ई कितना आ रहा है। पी ई आपका आ रहा है 0.68 और पी नॉट ई, क्या सिंबल था पी नॉट ई का, ऐसे था, वो कितना आ रहा है 0.32। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो देखोगे आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। दैट मीन्स आपका आंसर क्या है, सही है। समझ में आया सबको? ठीक है, मैंने फिर से एक बार बोल देता हूँ, अनिका जीते या गीता हारे, बात तो एक ही है क्योंकि दो ही प्लेयर खेल रहे हैं। इस वजह से मुझे गीता के विन होने की प्रोबेबिलिटी पता थी जो थी 0.68, तो मैंने उसे 1 से माइनस कर दिया, मैंने पी नॉट ई निकाल लिया, मतलब पी अनिका, जो कि आपका कितना आया 0.3832 आया। समझ पा रहे हो इस बात को? ओके, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। केशवा एंड अनेरी आर फ्रेंड्स, what is the probability that both will have different birthdays and what is the probability that both will have same birthday? वीडियो पॉज करो, सोचो जरा। दो लोग हैं, दो दोस्त हैं, what is the probability that they will have the same birthday? उनका बर्थडे सेम डे पड़ेगा और उनका बर्थडे डिफरेंट दिन पड़ेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सोच लिया आंसर? जो लोग पॉज करके निकाल चुके हैं उनके लिए मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, वरना आप देखते जाओगे बेटा सॉल्व नहीं होगा। प्लीज वीडियो पॉज करके पहले आंसर खुद निकालने का ट्राई किया करो। P having different birthdays, तो बेटा साल में टोटल कितने दिन होते हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे? 365। उसने क्या बोला, डिफरेंट बर्थडे होने के चांसेस कितने हैं? तो एक दिन छोड़ के, मान लेते हैं कोई एक दिन ऐसा है जिसमें उनका बर्थडे साथ में पड़ रहा है, ठीक है, तो उसके अलावा तो सारे दिन आपके फेवरेबली आउटकम हुए ना। कोई एक दिन ऐसा हुआ जिसमें उन दोनों का बर्थडे सेम पड़ रहा है, लेकिन डिफरेंट आउटकम्स, हमें डिफरेंट बर्थडे चाहिए, तो कोई भी, मतलब एक का 1 तारीख को पड़ रहा है, उसका 31 को पड़ जाए, एक का जुलाई में पड़ रहा है, दूसरे का जनवरी में, हमें क्या फर्क पड़ता है, किसी एक दिन नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो हम एक माइनस कर देंगे 365 में से, तो 364/5 आपका फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। पी हैविंग सेम बर्थडे, तो कोई एक दिन ऐसा होगा ना जिसमें सेम बर्थडे पड़ सकता है, तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है 1 और 365 डेज, उसका आंसर हो गया। और अगर आप रियल लाइफ में इसको देखो तो बहुत एप्लीकेबल है। दो लोगों का बर्थडे सेम दिन है, उसके चांसेस बहुत कम नहीं होते हैं, है ना, और दो लोगों का बर्थडे डिफरेंट दिन है, उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल एक रियल लाइफ सिनेरियो है, अगर आप इसे रिलेट करके करोगे तो आप काफी अच्छे से चीजों को समझ पाओगे। पढ़ाई में बेटा हमेशा ना चीज़ों को रिलेट करके समझा करो। अगर आपको कभी भी लगे कि आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो समझ जाना आप उसे रियल लाइफ से डोनेट नहीं कर पा रहे हो। स्टडीज़ में जिसका मन नहीं लगता है वो स्टडीज़ को रियल लाइफ में अप्लाई ही नहीं कर रहा है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने खुद ये सफ़र करा है इसलिए बता रहा हूँ। पढ़ाई में उस दिन मन लगना स्टार्ट हो जाएगा ना जिस दिन समझ आ जाएगा जो बुक में हो रहा है, जो क्लास में हो रहा है, वो रियल लाइफ में एप्लीकेबल है और बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। जितना हम समझ सकते हैं उससे ज़्यादा आपकी समझदारी टेस्ट होती है क्लास से। ठीक है, जो लोग ये कहते हैं ना कि मार्क्स लाने से कुछ नहीं होता, इंटेलिजेंस पता नहीं चलती है, बेटा आप समझदार कितने हो, क्या आपको अगर कोई टास्क ये दिया जाता है तो आप उसे कितना डेडिकेटेड होकर करते हो, आपके मार्क्स ये बताते हैं। किसी बच्चे के 100/100 आ रहे हैं तो मतलब ठीक है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है कि चलो वो रट्टा करता है या जो भी करता है, लेकिन वो डेडिकेटेड है, वो अपना काम मन से करता है, ये उसकी क्वालिटी झलक रही है उसके मार्क्स से कि वो सिंसियर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसका IQ तुमसे अच्छा हो सकता है आप उससे ज़्यादा समझदार हो, आप कोडिंग में उससे ज़्यादा अच्छे हो, वो मैथ्स में अच्छा, आप कोडिंग में अच्छे हो, लेकिन जब आप कोडिंग करते हो तो भी तो आप फोकस रहते हो। मैं कोडिंग का टेस्ट ले लूँ तो आप 100/100 ले आओगे, है ना। तो कभी भी आपको टॉपिक कोई समझ ना आ रहा हो ना तो समझ जाना आपने उसे रियल लाइफ में लगाने की कोशिश नहीं करी। आप ये सोच रहे हो कि ये टॉपिक बुक में ही है, कोई सपनों की चीज़ आ गई है जो बुक में ही है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सिंसियर रहो और हमेशा चीज़ों को रिलेट करो। सबसे पहला क्वेश्चन क्लास शुरू होने से पहले यही होना चाहिए कि सर ये रियल लाइफ में कहाँ काम आएगा। इफ़ वो टीचर अच्छा है तो वो ऑफकोर्स आपको बताएगा कि ये रियल लाइफ में कहाँ आता है काम।
हमेशा आप स्विफ्ट लर्न के टीचर्स देखोगे, जैसे ही वो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वो रियल लाइफ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। क्यों? ताकि आप रिलेट कर पाओ जो भी आपको कंटेंट दिया गया है उसको। ठीक है, चलो टॉपिक में वापस आते हैं। It is given that group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. ठीक है, then what is the probability that 2 students will have the same birthday? ठीक है, उसने बोला है नॉट हैविंग की प्रोबेबिलिटी इस बार दे रखी है और हैविंग की पूछ रखी है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्या अपॉन रेशियो वाला लगाना जरूरी है? बताओ। नहीं, बिल्कुल सही, रेशियो वाला फॉर्मूला लगाना जरूरी नहीं है, लाइक जिसमें आप अपॉन करके लिखते हो। आप कौन सा लगाओगे? पी नॉट ई इक्वल्स टू 1 माइनस पी ई, या फिर पी ई प्लस पी नॉट ई इक्वल्स टू 1। जिसको जैसा समझ में आया वो लगा सकता है। वीडियो पॉज करो, जल्दी से निकालो। आपके लिए मैं भी सॉल्व कर देता हूँ। जिन बच्चों को समझ थोड़ा स्लो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, स्लो लर्न करने में कोई खराबी नहीं होती है, लर्न ना करने में खराबी होती है, हमेशा याद रखना। कभी भी इस बात के लिए एम्बेरस मत होना कि हम स्लो लर्नर हैं। कछुआ भी स्लो था लेकिन फिर भी जीत गया था। ये लाइफ मैराथन है, इट्स नॉट 100 मीटर रेस कि फास्ट सीखोगे तो कहीं आगे पहुंच जाओगे। मैराथन है, सीखते रहना है। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा। तो मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला जो बताया था ना, जिन बच्चों को समझ नहीं आया मैं उनको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। बेटा एक दूसरा फॉर्मूला नहीं बताया था कि P जो होता है P नॉट E, दोनों का सम कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में देखो उसने बोल रखा है नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। उसने नॉट हैविंग द सेम बर्थडे आपको दे रखा है, तो P E आपको नहीं दे रखा है, वो उसने पूछा है सेम बर्थडे। और P नॉट E आपको दे रखा है क्या? 0.992 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो पी ई कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.992। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 8001, सॉरी नॉट 1 पॉइंट। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने खुद वीडियो पॉज करके इस आंसर को निकाला है, वेरी गुड बेटा, रियली प्राउड ऑफ यू, कीप इट अप, इसी तरह सीखते रहना। ठीक है, चलो तो देखें एक फन फैक्ट देखें। अकॉर्डिंग टू बर्थडे पैराडॉक्स, एक पैराडॉक्स है बर्थडे पैराडॉक्स, देर आर 70 पीपल इन अ रूम दैट देर इज अ 99.9% चांस दैट 2 ऑफ देम विल हैव सेम बर्थडे। लाइक अगर हम 70 लोगों को एक रूम में रखें तो 99.9% चांस होता है कि उनका सेम बर्थडे होगा। ठीक है, तो आप लोग अपने स्कूल की क्लास में देख सकते हो, जिनकी क्लासेस में 70 बच्चे हैं या 2 सेक्शंस जब कंबाइन होते हैं तो 70 बच्चे हो जाते हैं, तो 99.9% चांस है कि कोई 2 बच्चे ऐसे होंगे जिनका जो बर्थडे है वो सेम आएगा। ठीक है, मेरा तो अभी किसी फ्रेंड्स के साथ मेरा सेम नहीं है। ओके, तो बेटा आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा, डिफाइन करते हैं एक श्योर इवेंट क्या होती है। हमने डिफाइन किया एक इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। ठीक है, हमने देखा श्योर और इम्पॉसिबल इवेंट्स कैसे, हमने एग्जांपल्स के थ्रू समझा। टॉसिंग ऑफ द कॉइन्स के थ्रू हमने कुछ एग्जांपल्स किए, जिससे हमें ये पता चला कि जब सारे पॉसिबल आउटकम्स को हम ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 1। तो उससे हमने एक नया फॉर्मूला बनाया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग एन इवेंट, दोनों को ऐड करोगे तो 1 आएगा। तो कभी कभी आप प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग इवेंट अगर आपको पता है तो आप नॉट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो 1 माइनस करके उससे, और 1 आगे लिखना, पीछे मत लिखना, पता चला माइनस में आंसर लिख के आ रहा है। तो बेटा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूं जो आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं 1 सेकंड का गैप लूंगा जिसमें आप वीडियो को पॉज कर लेना, और फिर उसके बाद 1 सेकंड के बाद मैं आंसर प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, जैसे इसका प्रेजेंट कर दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट इन फॉर्म ऑफ लाइक्स एंड कमेंट्स। जिसने अभी लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट नहीं किया है प्लीज़ कर दो, ताकि बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना, ताकि मेरे या किसी अदर टीचर के जब वीडियोस आते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से आ जाओ अपने पेन कॉपी लेके। ओके, सो बाय।